Hello class, I am Zainab Bohra Sadriwala and this is my YouTube channel Zani Tutorial. Thanks once again for joining me. This particular video is about where I am going to teach you how to solve the adjustment and how to revise final account quickly. There are so many sums and there are so many adjustment in final account. If you want to revise the chapter, you have to go through all the sums because each and every sums have a new adjustment. So it is difficult at the exam point of view to revise the entire chapter, go through each and every sum. So this is the solution to your problem. How you are going to do it? Watch the video till my end and you will be understood ki kaise how to revise the chapter fast and how to understand each and every adjustment at the same time. So let's begin. So what I have done today, I have written all the adjustment here. यहाँ पे सारे adjustment I have written all the effects also. I am going to explain each and every adjustment. जो it is very important from the exam point of view. Usually been asked in the examinations. तो वो सारे adjustment और उनके effects मैंने यहाँ पे लिख के तुम लोगों को explain किया हुआ है. I have not made the format here. मैंने clearly small handwriting में या small तरीके से तुम लोगों को समझाया because this is for the quick revision. Same thing, you can take a picture, you can write in one full skip and you can revise it every day in like just 5 minutes. So I am not making the formats over here. So starting with the very first adjustment. Over here I have done some adjustment related to the goods and over here all the other adjustment are there. Our first adjustment, goods lost. There are adjustment when question is like goods lost by fire, goods lost in the accident, goods stolen by thief, goods distributed as free sample. So the thing which is related to goods जाता है trading account credit side. Remember from your trading account video मैंने इसमें बताया था कि it is related to the goods means factory thing, मतलब जाएगा trading account के credit side. So first effect, no matter good loss किस scenario में हुआ, but the first effect is trading account credit side. एंड क्योंकि द लॉस्ट इज अवर लॉस, इट इज अवर एक्सपेंस काइंड ऑफ, तो क्या हो जाएगा P&L के डेबिट में जाएगा. सो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, P&L अकाउंट डेबिट साइड. ये हो गया तुम्हारे एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट. रिमेंबर ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट्स हैव टू इफेक्ट्स. सो दिस आर द टू इफेक्ट फ्रॉम योर वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट. सेकेंड एडजस्टमेंट, गुड्स लॉस्ट ₹3000 एंड इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम रिसीव्ड. अब यहाँ पे ना सेम एडजस्टमेंट है बट वन मोर स्टेटमेंट इज एडेड. ओवर हियर इट इज रिटन कि गुड्स अपना लॉस्ट हुआ है 3000 का, बट हमें इंश्योरेंस कंपनी ने क्या दिया हुआ है, क्लेम दिया हुआ है. सो इट इज इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ओनली 1000. 3000 का लॉस है, 1000 का क्लेम रिसीव हुआ है. व्हाट विल बी द इफेक्ट? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड ₹3000, गुड्स लॉस्ट हम लिखते हैं ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड. सो ओवर हियर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड ₹3000 लॉस है, इसीलिए हम लिखते हैं P&L डेबिट साइड. सो अगेन P&L अकाउंट डेबिट साइड. ओवर हियर वी विल राइट 2000. व्हाई 2000? 3000 वाज वर्थ ऑफ रुपीज गुड्स, 1000 इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम. 3000 में से 1000 गया तो वी हैव 2000 लेफ्ट. तो 2000 का रियल एक्सपेंस हो गया क्योंकि 1000 तो क्लेम के लिए हमें मिल चुके हैं. So that 1000 will go in balance sheet asset side. You will write insurance claim ₹1000. So these are the three effects. Now what is our next adjustment? Next adjustment is goods purchased but not recorded. मैंने previous video में बताया था goods sold के बारे में. Over here it is goods purchased. हमने goods को खरीदा है, हमने goods buy किया है. Okay, goods buy किया मतलब it will add in purchase account. It will add in sundry creditor. Why sundry creditor? क्योंकि हम assume करेंगे because the amount is not yet paid, it is not recorded. Simply means amount is not yet paid. मतलब हम कौन है, उसके creditor है. So trading account debit side you will go in purchase column and you are going to add the amount. So goods का जो भी purchase का amount है वो जाएगा purchase के अंदर हो जाएगा add. Second thing, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड यू विल गो, यू विल एड इट इन द सन्ड्री क्रेडिटर बिकॉज यू आर द क्रेडिटर ऑफ दैट पर्सन नाउ. सो यू विल एड इन सन्ड्री क्रेडिटर. अगर सिर्फ लिखा है गुड्स परचेस बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट तो वी विल कंसिडर कि वो गुड्स को हमने सोल्ड भी किया हुआ है. सो इट इज लाइक गुड्स सोल्ड ऑल्सो. तो उसका और दो इफेक्ट हो जाएगा, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट के
क्रेडिट साइड वी आर गोइंग टू ऐड इन सेल्स, क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि गुड्स का क्या हुआ है, सोल्ड भी हुआ है. एज सुन एज इट इज सोल्ड यू विल ऐड इट इन द सेल अकाउंट. सेकेंड थिंग, बैलेंस शीट के असेट साइड यू विल ऐड इट इन सन्ड्री डेटर, बिकॉज हमने गुड्स सोल्ड किया एंड वी विल कंसिडर कि हमें पैसे नहीं मिले हैं, सो वी विल ऐड इट इन द सन्ड्री डेटर. So there are 4 effects for goods purchase but not recorded. It is trading account debit side purchase के अंदर ऐड, बैलेंस शीट liability side sundry creditor के अंदर ऐड, trading account credit side sales के अंदर ऐड, बैलेंस शीट asset side debtor के अंदर ऐड. Hope it is clear. Going further, now our next adjustment is goods sold but not recorded. यहाँ पे हमने देखा परचेस ओवर ईयर इज गुड्स सोल्ड बट नॉट रिकॉर्डेड. गुड्स को क्या किया है, हमने सेल कर दिया है, बेच दिया है, बट इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड. तो अगर यहाँ पे सेल किया है और नॉट रिकॉर्डेड है तो यहाँ पे भी सेम है. सो सेम इफेक्ट. इट इज़ लाइक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड वी आर जस्ट डीलिंग अबाउट सेल ओवर ईयर. जब सेल लिखा है तो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग रिलेटेड टू परचेस. सेल्स है मतलब परचेस से रिलेटेड कुछ भी नहीं करना है. सो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड ऐड एंड सेल, बैलेंस शीट असेट साइड ऐड एंड सन्ड्री डेटर, बिकॉज हम अज्यूम करेंगे पेमेंट नहीं मिला है तो वो हमारा डेटर बन गया. सो इट इज ऐड एंड सन्ड्री डेटर, ऐड एंड सेल. क्लियर. Goods purchase and included in closing stock, but the goods purchase is not recorded in the books of account. तो अगर goods purchase किया है और books of account में include नहीं किया है तो you have to do that, right? तो goods purchase not recorded, तो what you will do, trading account debit side purchase के अंदर include कर दोगे, same बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर include कर दोगे. बट ओवर ईयर हमने ये 2 एंट्री भी की थी, ये 2 इफेक्ट्स भी दिए थे, यहाँ पे हम नहीं देने वाले. वाई? बिकॉज द एडजस्टमेंट इज क्लियरली रिटर्न एंड इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक. गुड्स को परचेज किया है और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर इंक्लूड कर दिया, मीन्स यू डोंट हैव टू डू एनी इफेक्ट नाउ. यहाँ पे क्या किया है, ऑलरेडी इट इज इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक. ओके, सो ओनली 2 इफेक्ट, ट्रेडिंग, परचेज, बैलेंस शीट, सन्ड्री क्रेडिटर. Clear till here? So class, our next adjustment is prepaid expenses. कंसिडर करते हैं कि सैलरी जो है जो एम्प्लॉयज़ को दी जाती है वो हमने 3 इयर्स की एक ही साथ दे दी. सो हमारे एक्सपेंस को हमने क्या कर दिया है, प्रीपेड कर दिया है. सो अगर एक्सपेंस को प्रीपेड किया है मतलब P&L के अंदर जब तुम एक्सपेंस लिखते हो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का, उसमें तुम 3 ईयर का एक्सपेंस नहीं लिख सकते. सो दिस विल बी द इफेक्ट. अगर प्रीपेड एक्सपेंस है तो P&L के अंदर से लेस कर देना है तुम्हारे एक्सपेंस को. यू विल राइट ओनली 1 ईयर फाइनेंशियल एक्सपेंस, तो बाकी 2 साल के एक्सपेंस को क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे. और बैलेंस शीट के असेट साइड क्या कर देंगे, उस एक्सपेंस को लिख देंगे एज प्रीपेड एक्सपेंस. कंसिडर करो दिस इज 3000 एक्सपेंस, तो 3000 मतलब 3 साल का है, तो P&L के अंदर जाएगा 1000, बाकी 2000 जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड. व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? सैलरी है, अभी तक पे नहीं किया, एम्प्लॉयज़ ने हमारे लिए काम कर दिया है बट अब तक उनको सैलरी मिली नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इट इज़ ओनली 1000, तो तुम जाओगे P&L के डेबिट साइड ऑफ सैलरीज रिटर्न, यू विल ऐड 1000 इन दैट. अगर नहीं है तो यू विल गो इन लाइक P&L के अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ₹1000, बैलेंस शीट लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ₹1000. यूजुअली P&L के अंदर सैलरी, इफ इट इज वेजेस, एनीथिंग इट इज, यू विल गेट इन P&L, और P&L के अंदर तुम्हें क्या कर देना है, ऐड कर देना है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. नाउ प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है सैलरी का. इट मे बी वेजेस, इट मे बी एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी हो सकता है जिसका पेमेंट बाकी है, इफेक्ट विल बी सेम. जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंस के अंदर होता है एडवर्टाइजमेंट. यूजुअली इट इज आस्क्ड, जो ट्रायल बैलेंस में दिया जाता है, बट इट इज़ अ हिडन एडजस्टमेंट. जैसे कि ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 3 ईयर एडवर्टाइजमेंट इज पेड, जैसे मैंने सैलरी का बताया, सेम एज यू विल डू विद द एडवर्टाइजमेंट. क्लियर. गोइंग फर्दर, नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज, समझो असेट है ₹25,000 का, जिसमें से 15,000 के असेट को हमने बाई किया है 1 अक्टूबर 2018 को. उस पर डेप्रीशिएट करना है 10%. असेट को डेप्रीशिएट करते हैं तो इफेक्ट रहता है P&L के डेबिट साइड बिकॉज इट इज़ एन एक्सपेंस, और बैलेंस शीट में जो भी अपना असेट है उसमें उसको डिडक्ट कर देते हैं. ओवर ईयर
25,000 and 15,000 दो डिफरेंट अमाउंट दिया हो, तो हाउ यू विल डू? सी 25,000 का तुम्हारा टोटल असेट है, फ्रॉम दैट 15,000 का जो असेट है वो तुमने 1 अक्टूबर 2018 में बाई किया है, रेस्ट 10,000 को तुमने फुल फाइनेंशियल ईयर के लिए यूज़ किया है। अगर फुल फाइनेंशियल ईयर के लिए यूज़ किया है तो 10% डेप्रीशिएशन निकाला, यू विल गेट 1,000 रुपीज़ एज योर डेप्रीसिएशन अमाउंट। बट 15,000 को तुमने सिर्फ 6 महीने के लिए यूज़ किया है, सो 6 मंथ इट इज़ नॉट यूज, मतलब लाइक तुमने अक्टूबर में मंगाया, सो इट इज़ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 6 महीने के लिए ही यूज़ किया है, तो तुम डेप्रीशिएट करोगे फॉर ओनली 6 मंथ। तो इट इज़ 15,000 इंटू 10% इंटू 6/12, तो दैट इज़ 750। 1,000 प्लस 750 इज योर टोटल अमाउंट। तो तुम जाओगे P&L के डेबिट साइड, यू विल राइट 1,750, देन यू विल गो बैलेंस शीट असेट साइड एंड यू विल डिडक्ट 1,750 फ्रॉम वॉट एवर इज योर असेट। क्लियर? If it is confusing, I am going to make a chart and give it to you. I'll explain more clearly over there. Now next effect is related to the RDD and bad debts. This is just written casually, but ये पूरा explain किया गया in my previous video. The link will be in the description box. Go and check my previous video ताकि ये पूरा समझ में आए. Going further, our next effect is closing stock. Now closing stock में कभी कभी दिया रहता है दो वैल्यू, वन इज मार्केट वैल्यू एंड द अदर इज कॉस्ट वैल्यू। अंडरस्टैंड करो, अगर मार्केट वैल्यू है 25,000, कॉस्ट वैल्यू इज 20,000, यू विल चूज 20,000। मतलब करना क्या है, जो वैल्यू सबसे कम है वही वैल्यू को तुम चूज करोगे। क्लोजिंग स्टॉक टू इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड। क्लियर? I hope the adjustment is very clear to you. If you have any queries in any of the adjustment, please let me know in the comment box. The picture has been provided. Take the essence of the picture and revise that adjustment daily. Your final account will be easier for you now. Thank you so much.